नमस्ते। कर्मा इन अ कप के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने शेयर किया था कर्मा इन अ कप, यानी कि हम कैसे दिनचर्या से, डेली हैबिट से अपने कप यानी कि चाय का कप, या ये लाइफ जो कि एक चाय के प्याले की तरह है। भगवान ने हमें बहुत ही भरी हुई ज़िंदगी दी है। हमारे हाथ में है कि हम इस ज़िंदगी से कितना बेहतर स्वाद या कितना बेहतर इम्यूनिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इस एपिसोड का नाम है कर्मा इन अ कप। कर्मा इन अ कप में हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के टॉपिक में दिनचर्या या डेली रिचुअल्स। Ayurveda is a holistic science, very indigenous to India. So I'm going to talk about little bit of Ayurveda in our daily life, and we are going to be joined by Dr. Richa Shukla, who is going to talk about the daily karma or daily habits that are good as per astrological science. So I'm waiting for Dr. Richa to join us so that. Hello, Dr. Richa. नमस्कार. हेलो, नमस्कार। कैसी है प्रेरणा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? Good to see you. Yeah, same here. Good. So, Dr. Richa, I was just sharing with our viewers that Ayurveda is a holistic science, very indigenous to India. Maybe about 5,000 years or more. It has been practiced for so many years. Of course, we are not so educated in terms of understanding the benefits of it. But slowly people are now getting back to the same way of life, because they understood that that's the life which was much more sustainable. So as per Ayurveda also, Ayu means life, Veda is knowledge. So combining both the things, combining how we can live a sustainable and a healthy life with the knowledge of this science is what Ayurveda is all about. And I was just sharing with our viewers that, both Ayurveda or astrology, it's a combination, part of the universe, like sun, planet, earth, they are part of a bigger cosmic energies. So is man also a child of these cosmic forces, external environments, and daily habits. If we kind of gel all of these well together during our lifetime, we'll have a much better and a healthy life. We'll be able to kind of create a balance, which God wanted us Yes. to be. This is what I think. Ayurveda has a significance in our life, and I'm sure astrology also would have a certain significance. Why and how these cosmic energies, they impact us, or what are the benefits, or what are the areas that we can understand that it is impacting, and we can do something about it. So that's why I wanted that today's conversation should be something where viewers could benefit from the knowledge that we could share on what are the reasons why Dincharya or Dainik Karm are important. What are they? In fact, what are these Dincharyas or Dainik Karms? Why they are important? And what is the purpose of doing them purposefully, helping it? Good afternoon, Kailash. So Kailash is a returning viewer with us. Harsh has also joined. I hope everything is well with you, Harsh. Great. Good evening, all. So, Dr. Richa, would like to know what is the importance, what are Dainik Karm, and then we'll share what are the Dincharyas as per Ayurveda. या तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए क्या है कि मैं एक लाइन बोलूंगी, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
पंच तत्व जो हैं इनसे हमारा शरीर निर्मित है। यू नो 5 एलिमेंट्स, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई एंड वन मोर इज एयर, एयर, वायु। एयर। हाँ, ठीक है। तो क्या है कि ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, इन सारे एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी लाइफ में होना ही चाहिए। Right. Getting my I point? agree with Yes. that. And Yeah. when if I talk about astrology, then I would say all the planets have representation of these 5 elements. Right. So, in Ayurveda also, the structure of our body is completely based on these 5 elements. That's right. Earth is the body, is the structure that we have is earth. Air or space is the element of movement. We are breathing, digestion is happening, respiration is happening, elimination. So this is part of an air or space, Yes, both, yes. because there's space between the cavities, there's space between different organs. And then fire or heat energy, which is the digestive fire that helps us digest, assimilate food and all of that. And water, of course, blood is water, all the digestive juices is water. So this is very interesting, composition of 5 elements that creates this cosmos. That's it. The composition of 5 elements that creates us. And now you are sharing that the composition of these 5 elements is what astrology is also all yes. about. All these 9 planets have either or the other element in it, So सबसे पहली बात है कि if we want to specify planets, or if we want to make a synchronization with the planet's energy, we have to bring all these 5 elements in our Dainik karma. Right. Then only we can get connected with the cosmos. और फिर आपको कोई और उपाय करना ही नहीं होता। अब जैसे आपने कहा कि क्या होते हैं दैनिक कर्म, तो देखिए हमारे यहाँ व्रत, सेवा, दान, यज्ञ, धर्म, ये 5 कर्म सबसे इंपॉर्टेंट बताए गए हमारे शास्त्रार्थ में। अगर आप अपने दैनिक कर्मों में इसको शामिल कर लेते हैं, मतलब फास्टिंग से तो है, बट मैं कहूंगी अदरवाइज व्रत का मतलब होता है डिसिप्लिन इन योर लाइफ। डिसिप्लिन। सो सिमिलरली आयुर्वेदा में भी अगर हम इसी टर्म को आयुर्वेदा में ले जाएं तो व्रत का मतलब होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो आप अपनी लाइफ में लाएंगे द मिनट व्हेन यू गेट अप। सो we have become modern, we have studied so much and we say that we are all evolved, हमें टाइम से फर्क नहीं पड़ता। बट सूरज इवन आफ्टर इन दिस लॉकडाउन सीजन्स दे केप्ट चेंजिंग, डे एंड नाइट वो अपने टाइम पर होते रहे, इवन इफ नेचर अपना कोर्स नहीं बदल। एग्जैक्टली सिमिलरली हमें सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है, तभी हमारे बॉडी के ये सारे एलिमेंट्स जो हैं बैलेंस में आएंगे। सो सिमिलरली दैट इज अ व्रत, दैट इज अ डिसिप्लिन। देखिए क्या है, गेट अप बिफोर सनराइज। इसमें क्या है कि अगर आप केवल किसी से ये कहना कि सनराइज से पहले उठना चाहिए, तो सबसे पहला प्रश्न होगा क्यों उठना चाहिए। आज की जनरेशन बहुत क्यूरियस है और अच्छा भी है। आई फाइंड इट वेरी गुड। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और आपका हाथ अगर कोई गर्म चाय में डाल दे, तो आप एकदम से अलर्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? एग्जैक्टली ठीक है। इसलिए अगर आप सुबह उठकर सूर्य जो प्रकाश का पुंज है, which is completely a fire, when you go and see the rising sun, you feel that I have to shine like sun every day, and see how punctual
this entity is. You know, at 5, if sun rises at 5:30, it is 5:30. So, yes, it is 5. Half an hour 5:30. before. For whole month, it is going to be 5:30, irrespective Absolutely. of the weather. So, आपको सूर्य के दर्शन से केवल ऐसे ही नहीं कि उठ जाओ, पहले क्या मिलता है? सबसे पहले व्रत, डिसिप्लिन इन लाइफ। तो जब आप मतलब कोई भी चीज, अब एस्ट्रोलॉजी में सूर्य आत्मा होती है, द सोल। तो व्हेन यू सी राइजिंग सन, टेक माय वर्ड्स, you feel so confident and energetic, and that daily dose. And also, so that is what, if you bring discipline in your life, if you take vrat is what? Discipline. If you take a charge of your life, you know, life is better. Absolutely. So similarly, when you get up before sunrise, that is the time of vata. So vata is air and space. So you know, the digestion, that whatever food you have had last night is digested completely. Now it has to eliminate. You know, you have to make space in your body for air. So if you get up at that time, the nature helps you. You know, it becomes easier for you to remove toxins out of your body. So that's how in Ayurveda that time is important. And once all the toxins are out of your body, you are ready with renewed energy, you know, then you take the benefit of sunlight, you go exercise, your dopamine level becomes high. So all of these things kind of help you remain a positive person, enhance your quality of life, get ready for the challenges of the day. So yeah, and if you go it is important. And if you go deeper, so when the sun rises, and you know, I mean, at the time of dawn, basically, you know, जब सूर्य उदय होने को होता है, इसका मतलब है कि रात्रि खत्म हो रही है और सुबह हो रहा है। ये जो संधि काल होते हैं ना, ये जो ट्रांजैक्शन मोड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस वक्त उठकर आप कोई भी इच्छा करते हैं, वो आपकी पूरे होने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि आप उस वक्त जब कहते हैं ना कि एक पहरेदार दूसरे को ड्यूटी देकर जा रहा था, आप उस वक्त जाते हैं और उसको वो बता के जाता है, भाई इस वक्त ये आता है, इसका ये काम करना है, यू नो, संधि काल। एग्जैक्टली। सो मॉर्निंग संध्या मतलब सुबह का वंदन, और संध्या इवनिंग जो जिसको हम कहते हैं गोधूली वेला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों टाइम, इफ यू विश समथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, आप करके देखिए, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। I agree. My Nana ji used to say, सुबह 4 बजे का सपना है तो जरूर सच होगा, और शाम को जब लाइट अगर जलानी है तो सायकाल में लाइट जलाते हुए अगर आप कुछ मांगोगे तो वो जरूर पूरा होगा। सो इस तरीके से ये हमारे मतलब ट्रेडिशन में चलता आ रहा है। सो वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्टिविटी वन शुड प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज एज पर एस्ट्रोलॉजी? सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहला, क्योंकि सुबह का समय सूर्य का है, सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य के दर्शन कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सूर्य के सामने 5 मिनट आंख से आंख मिलाकर खड़े हो जाइए, एंड यू सी योर प्रोग्रेस, योर फेम, योर इम्यूनिटी, everything is going to be increased. So एस्ट्रोलॉजी में सूर्य राजा है ग्रहों का, ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो अगर आप सुबह उठकर ज्योतिष के लिए जो आप पूछ रहे हैं, सूर्य की वंदना कीजिए, जो जैसे कर सकता है। मैं सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ती हूँ, ठीक है, वो मैं पढ़ सकती हूँ इसलिए पढ़ती हूँ। अगर आपके पास कम समय है तो आप केवल और केवल सूर्य के दर्शन कर सकते हैं, बट उगते हुए सूर्य से 5 मिनट के लिए आंखें मिलाइए, उससे बात कीजिए,
और अपनी कीर्ति, अपने अंदर लाइफ में उसके जैसा डिसिप्लिन मांगिए, आपको जरूर मिलेगा। Absolutely. So I remember my dadi used to wake us up in the morning and she used to tell us, उठो जाओ, सल्यूट करके आओ और बोल के आओ आज सूरज भगवान को, आज हम ये करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए. So this is something that we should inculcate, daily habits. That's it. Yes, Sarah, spiritual progress and the vitamin D too. Of course, the vitamin D at that point in time is really वो good. तो है ही है। And the air is pure at that point in time. Your body is more receptive to take that air, to take that positive energy of the air. And also, Dr. Richa, there is a ritual in the morning to remove all the toxins. So if you are from your body, so if you are going and standing outside, facing the sun, and the sunlight is there on your body, so a lot of negative energy from your body is also there. Yes, of course. So it kind of helps you. So there is one major element of dincharya, which is cleaning your mouth. Earlier I remember my grandparents, they used to do that outside in the garden. They would go out in the garden, they would have this herbal tooth powder that they would do, and then they will do what we call as oil pulling now. They used to do that, and everything outside in the garden. So both the things, they are getting the natural sunlight, and they are also cleaning their internal system. Yes. So system. So a very important part, I think. Very interesting. Yeah. So they also say that when you get up in the morning, you should also kind of pray or thank to Ma Lakshmi. Like I remember there is a verse which says कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करके अगले हाथ में लक्ष्मी का विश, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, right. तो अपने हाथों को this is also देखना. हाँ, so I think this is also a powerful ritual where you are kind of thanking all the gods. मतलब you may be able to tell us better. इसका आप एक साधारण मतलब समझिए, सारा और सारा काम आप इन हाथों से करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट टूल आपके अगर कोई चीज है, आंखें और हाथ हैं आपके. तो आपको सबसे पहले आपको कहा गया कि यहाँ सरस्वती है, यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ खुद भगवान गोविंद हैं, विष्णु हैं. तो इसका मतलब ये था कि आपके हाथ ही आपके भगवान हैं. पुरुषार्थ पर जोर दिया गया था कि यहाँ पर सब कुछ है, इन हथेलियों में सब कुछ है. सो इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, गॉड इज विद यू. बेसिकली मतलब ये है इस बात का, believe in yourself. Exactly. Believe in your destiny, I would say, because हाथ देखिए और मानिए कि ईश्वर मेरे साथ है. पहले की सारी बातें दोनों दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं. आप भगवान को एक नए दिन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. आयुर्वेदा के हिसाब से आप सुबह हाथ अपने आंखों पर मसल रहे हैं और आप अपने फेस से सारी डलनेस और रात की थकान को निकाल रहे हैं. आंखों की छोटी छोटी मसल्स को मसाज कर रहे हैं when you are doing this. So a lot of simple habits, whether we call it an Ayurvedic habit or we call it an astrological habit. Yes. But there are certain rituals and habits that kind of help us move ahead in life. And अच्छा, चलिए जो दैनिक कर्म को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं प्रेरणा. और जो दूसरी चीज है, पहली हो गई व्रत और डिसिप्लिन, दूसरा है सेवा. सेवा, सर्विस. आपको कभी भी अगर किसी की मदद का कोई मौका मिलता है तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए. Service is the biggest, I would say, good karma. और सेवा सीधे सीधे ज्योतिष में शनि से जुड़ी हुई है.
सर्विस इज रिलेटेड विथ सैटर्न, एंड सैटर्न क्या है, शनि क्या है, जस्टिस, आपके कर्मों का निर्णायक, पनिशमेंट देने वाला या रिवॉर्ड देने वाला. सो इफ यू आर डूइंग सर्विस टू द सोसाइटी और सर्विस टू द डाउन ट्रॉडन, जरूरतमंद की मदद करना, तो शनि हमेशा के लिए सेटल हो जाते हैं. और आप कार्मिक दंड से बच सकते हैं, क्योंकि आपने तो जस्टिस को ही अपना बना लिया है, जो न्याय करने वाला है. एक वही या सो दूसरी चीज है, सर्विस करना चाहिए. बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई डॉक, बिकॉज सर्विस करने से आपके द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू गेट, वो एग्जेम्पलरी है. वो वाली खुशी आपको किसी और तरीके से मिल ही नहीं सकती. बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है. वी हैव अ व्यूअर हु सेइंग कार्मिक अकाउंट क्लियर रखना चाहिए हमें. ऑफ कोर्स तो लोगों का सेवा भाव करते रहना चाहिए, कार्मिक अकाउंट क्लियर रहेगा, शनि भगवान खुश रहेंगे. अपने आप धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा आपका कार्मिक अकाउंट. जैसे जैसे हम आज नित्य कर्म पर ही बात कर रहे हैं, आपने अगर खुद को डिसिप्लिन कर लिया, दूसरा काम आपने सर्विस स्टार्ट कर दी, यू आर ऑन द पाथ ऑफ क्लियरिंग योर कार्मिक पाथ. हम 3 चीजें और बताएंगे अभी. अगर आप ये 5 चीजें करते हैं, आपका कार्मिक अकाउंट काफी सेटल हो जाएगा. बिल्कुल. सो दिनचर्या से आप अपने बॉडी के टॉक्सिन्स निकालते जाएं और दैनिक कर्म अच्छे करके, नित्य कर्म व्रत के हिसाब से सेवा करके कार्मिक टॉक्सिन्स निकालते जाएं. बहुत बढ़िया कार्मिक टॉक्सिन्स. बिल्कुल डॉक्टर रिचा, दिस इज सो वंडरफुल. ठीक है. ओके, तो बढ़ते हैं तीसरे, दान. दैनिक कर्म जो दान एक और दान आप समझ लीजिए, आज मैं दान को भी एक क्लैरिटी दे देती हूँ. जो हम लोग अपने पुराने सूट्स जो अपनी मेट को देते हैं ना, हम दान नहीं करते है ना. हम तो बहुत करते हैं जी, हम तो अपनी मेट को भर भर के थैले कपड़े देते हैं. कम ऑन, आप दान नहीं कर रहे हैं. आप जो अपने घर में नहीं रख पा रहे थे, वो उसके सर पर डाल रहे. दान के लिए एक बहुत बड़ी चीज आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ. दान केवल वो होता है जब आप अपने खर्चे में से कुछ कटौती करके किसी को कुछ देते. इट इज, आप सरप्लस मनी को जब देते हैं तो दान नहीं है. कृष्णा हैज गिवन अ होल इलस्ट्रेशन ऑन दिस, कि उन्होंने मतलब किसी के घर गए तो उनको खाना जब उसने दिया तो वो खाना खा रहा था, एंड ही वॉज वेरी हंग्री. कृष्णा हैज टेकन अलग सा कुछ गरीब का रूप रख कर गए थे, और उन्होंने अर्जुन को साबित करना था कि व्हाट इज दान. तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, तो उसने कहा कि भूखा तो मैं भी इस वक्त बहुत हूं, और खाना बस इतना ही है. तो उसने अपना खाना छोड़ा और वो उसके आगे रख दी थाली, कृष्ण के आगे, और ये कहा कि आप खा लीजिए. देन कृष्णा टेकन द रियल स्वरूप और कहा, सबसे बड़े दानी तुम हो इस धरती के. तो समझ रहे हैं ना, दान को करोड़ों से मत आंकिए. अगर आप अपनी रोटी से किसी को खाना भी खिला देते हैं तो आप सबसे बड़े दानी हो सकते हैं. अगर आपके पास 1 लाख करोड़ रुपया है और आप 25 करोड़ दान करते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, पर आप बड़े दानी नहीं हैं. नो, दानी नहीं है. दानी नहीं. एग्जैक्टली. कर्ण बड़ा दानी था. एग्जैक्टली. देखिए, हमारी जब संस्कृति की बात हम करते हैं तो कर्ण बड़ा दानी था. उसको पता था कि ये कवच और कुंडल अगर मैं किसी को दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा. महाभारत का प्रसंग है. बिल्कुल. फिर भी जब कृष्ण ने कहा कि इससे मांग लो इसके कवच और कुंडल, ही हैज गिवन दैट, इसलिए वो महादानी कहलाता. उसको पता था कि इसका रेपरकशन होगा कि मैं मर जाऊंगा.
बट अगर किसी और को जरूरत है तो मैं दे दूंगा। तो दान करें, आप मेड को भी कपड़े दें, दैट इज ऑल्सो गुड, नॉट बैड, गुड। बट कुछ अपने खर्चे से, अपनी जरूरत से कटौती करके भी कुछ कीजिए, वो रियल दान की श्रेणी में आता है। और जब आप वो करते हैं तो आपके, सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम किसी को कुछ चीज देते हैं ना, तो कॉस्मोस की एक एनर्जी अपने आप क्रिएट होती है कि दैट विल डेफिनेटली कम बैक टू मी बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग। राइट। एक्शन का रिएक्शन ही तो पूरा है, चल रहा है। तो जब आप कुछ भी देते हैं, दैट इज श्योर इट विल कम बैक। तो अपने दैनिक कर्म में गिविंग को शामिल कीजिए। ब्यूटिफुल, दिस इज सो ब्यूटिफुल। और एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं इससे कनेक्ट करूंगी तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप दान करते हैं, किसी को कोई चीज देते हैं, तो फिर आप ये समझिए कि क्योंकि आप किसी के प्रिजर्वर बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आप किसी का पोषण कर रहे हैं, तो बृहस्पति बहुत प्रसन्न होता है। और आप दान करके बृहस्पति को, जुपिटर को पावरफुल करते हैं। ओके। सो इफ यू डू व्रत, you are strengthening the sun. If you are doing seva, you are strengthening the Saturn. If you are doing dan, you are strengthening the Jupiter. तो करते जाइए और ग्रह आपके साथ चलते चले जाएंगे। चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसी को अगर हम आयुर्वेदा के साथ जोड़े तो हमारे को धरती एज अ गिफ्ट मिली है गॉड से। बिल्कुल। उन्होंने ये सारा नेचर क्रिएट, यहाँ जितना भी खाना पीना हमारे लिए है वो सब उन्होंने क्रिएट किया है। सो हमारा ये कर्तव्य है कि जैसा हमें मिला है हम उससे बेहतर तो कर नहीं सकते, बट हम उसको डिट्रियोट करके ना जाए। राइट। सो हमारी तरफ से यही एक सेवा है कि जिंदगी में आपने जितना भी खाना खाया है जो आपके लिए किसी और ने उगाया और आपने अपने शरीर का उससे पोषण किया, तो आप अपनी तरफ से अपने जीवन काल में फ्रूट्स के पेड़ लगाएं, मतलब जितना भी प्लांटेशन कर सकते हैं, ये सेवा एक इंसान कर सकता है। दान के लिए मेरी दादी कहा करती थी कि अगर तुम अपने फ्रूट्स खाने के बाद उन सीड्स को जाके सड़कों के साइड में लगा देते हो तो इस जिंदगी में कभी भी कोई भूखा नहीं मरेगा। मतलब अगर कोई गरीब है, कोई सड़क पे रहने वाला है, वो भी भूखा नहीं मरेगा। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दान दैट you could do. Some good things that people should be able to follow. We have a question. मैम एक बात बोलना चाहती हूँ, जो हेल्प करते हैं कभी कभी उनको ग्रांटेड भी लिया जाता है, लोग फायदा उठाते हैं कई बार। देखिए, दिस क्वेश्चन इज टुवर्ड्स यू। आई नो दिस इज समथिंग वंस एंड फॉर ऑल के लिए सब लोग क्लियर करें। अगर आप अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं, और मैं गीता की बहुत फर्म बिलीवर हूं, क्योंकि गीता में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो अनआंसर्ड हो। जो भी आप सोच सकते हैं सबका आंसर ऑलरेडी वहां पर है। कृष्ण ने क्लियर कहा है कि आप स्वधर्म पर ध्यान दीजिए, पर धर्म पर नहीं। Be watchful. So I think Anju, this answers your question. Be watchful for your own deeds, not for others. They are creating their karmas. What is the name of that? Who have asked this question? किसने पूछा है ये प्रश्न? अंजू जी। अंजू गोपी जी। अंजू जी, अपने कर्मों को अच्छा करते चलिए। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है, नेकी कर और दरिया में डाल। हमें रिटर्न उस व्यक्ति से अगर हम चाहेंगे तब तो ये व्यवसाय है, दिस इज अ बिजनेस। अगर किसी ने मेरा फायदा उठा भी लिया जी, तो वो केवल और केवल अपना हिस्सा ले गया मुझसे, मेरा कुछ भी नहीं लिया। आपको लगता है, वर्ल्डली सेंस में लगता है कि हमारा कुछ ले गया, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, बट ऐसा नहीं होता। जब उसका अकाउंट पूरा हो जाएगा वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। कीप डूइंग द गुड कर्मा। राइट।
Absolutely. We are building. So even daily habits, you build them for yourself. You know, That's it. this is a being. ये एक खुद कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारा शरीर है, सही है। और इस शरीर से हम जो भी कर्म करते हैं वो हम अपने लिए, अपने कर्म, अपनी इस कॉस्मिक एनर्जी को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं. We have another question. Yeah. ये व्रत और उपवास पे है. हाँ. कैलाश, I think Kailash wants to know. Fasting, people say lots of, so I don't understand the question. He's saying, how do you take that in connect with Ayurveda and astrology? What can we eat if we have what can we have if we are fasting? So उपवास में हमें क्या खाना चाहिए as per Ayurveda and astrology? He wants to know both. देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली मैं सबसे पहले तो एक बात आपसे कहूंगी कि उस व्रत का कोई फायदा नहीं है जो आप किसी भी प्रेशर या किसी भी फायदे के लिए कर रहे हैं. कि सावन के सोमवार का व्रत रख लिया तो अच्छा पति मिल जाएगा, मंगल का व्रत रख लिया हनुमान जी खुश हो जाएंगे, ये सब बेकार है. नंबर 1, पहली चीज होनी चाहिए कि आप व्रत केवल और केवल अपने इंद्रिय निग्रह के लिए कर रहे हैं. इंद्रिय निग्रह होता है टू ब्रिंग डिसिप्लिन और टू कंट्रोल योर सेंसेस. सबसे पहली बात है कि व्रत का मतलब है कंट्रोलिंग योर सेंसेस. तो अगर आप जितना हल्का, कहते हैं ना कि अगर आप फ्रूट्स खाली खाएं व्रत में तो बहुत अच्छा है. जब आपका मन ये करता है कि इसके पकौड़ी बना लो, उसका ये कर लो, मखाने तल के खा लो, आपका इंद्रिय निग्रह हो ही नहीं रहा है. You are not controlling your senses. So the vrat or the fasting is futile. I would say जो आपका बॉडी टाइप है वो आई थिंक प्रेरणा जी ज्यादा अच्छा बताएंगी कि वो आप भोजन लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से सात्विक और हल्का खाना, या जो आप कभी नहीं खाते हैं वो व्रत में खा के देखिए, तब अच्छी तरीके से इंद्रिय निग्रह होगा. निग्रह, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. व्रत का पर्पस आपको अपनी बॉडी में एक बैलेंस लाना होता है. सो अगर हम अपना दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, सो दिनचर्या सिर्फ सूरज उगने से नहीं शुरू होता, वो एक रात पहले से शुरू होता है. जैसे व्रत भी सूरज उगने से सूरज ढलने तक नहीं होता कि रात को 12 बजे पार्टी कर लेते हैं, करवा चौथ ओवर. सो इट्स नॉट दैट. अगर आप रात को 10 बजे सो गए हैं, 10 से 12 बजे की आपने गहरी नींद ली है और आप सुबह वक्त से उठे हैं, आपने अपने बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर किए हैं, बॉडी को अच्छे से क्लीन किया है, पूरा दिन आपने अपने नित्य कर्म, व्रत, सेवा, दान या ये सब कुछ किया है अपने नॉर्मल रूटीन के साथ, इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए आपको कहीं से अलग टाइम नहीं निकालना, कोई इसको अपने स्केड्यूल में नहीं डालना. ये सिर्फ एक आदत है, एक हैबिट है जो आपने बिल्ड करनी है. तो आपको व्रत रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर आपका अपना डिनर शाम को 6-7 बजे खत्म हो गया एंड यू आर हैविंग योर नेक्स्ट मील एट नेक्स्ट मॉर्निंग 7, so you are already fasting for about 12 hours. You do not really kind of fast. Yeah. And also each and every body type has different needs of fasting. The purpose of fasting is different. What is the purpose? Are there any toxins that we want to remove? Is there something which is a kind of digestive fire is weak, we want to enhance it? Is the respiration is not clear, do we want to kind of enhance it? Elimination, what is not happening? So you have to kind of eat that way, you have to drink that way. That is the purpose of fasting in Ayurveda also. So for me it's only control over your senses. So अगर आप ये वैसे भी ले आते हैं बिना फास्टिंग के तो भी बहुत अच्छा है. मैं फास्ट नहीं करती हूँ, बट हाँ मेरी दैनिक चर्या, मेरा दैनिक खाना ही बहुत सात्विक है. बहुत सात्विक, of course. So I think I love fasting for Karwa Chauth. That is something that I really kind of look forward to. That is for I think no reason behind it. उस दिन चतुर्थी का चंद्रमा काफी पावरफुल होता है, तो इसलिए उसके दर्शन अच्छे हैं और करने चाहिए. बट
व्रत आपकी अपनी Right. इच्छा है, एंड इट्स अ सेलिब्रेशन। Of course. It's a celebration. So basically बचपन से देखते आए हैं, it's a celebration. तो बस So वो अच्छा that है, is kind of दैट इज अवर कल्चर, सेलिब्रेशन है। सो yeah, that is our तो कोई culture. दिक्कत नहीं, करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरा दिन हल्का फुल्का, हाँ, तब भी दिक्कत नहीं है। अच्छा है। जी। Of course. चौथी जो चीज है प्रेरणा जी, ये है यज्ञ। Right. देखिए, शास्त्रों में जब ये बातें लिखी गई थी तो वो बहुत ही डायरेक्ट मीनिंग के साथ लिखी गई थी। मतलब यज्ञ को उन्होंने केवल और केवल अग्निहोत्र से जोड़ा था। अग्निहोत्र मतलब जो हम रोज सुबह हवन करते हैं, दैट वाज यज्ञ। बट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव these karmas a new meaning for today's generation, I would say. Like Absolutely. So यज्ञ का मतलब है कि आप हर दिन अपनी एक बुरी आदत को होम कर दीजिए, जला दीजिए। oh, so profound. Right. यज्ञ का परफॉर्म करना पूरा हो जाता है। Right. किसी दिन क्रोध को जला बिल्कुल। दीजिए, किसी दिन ईर्ष्या को जला दीजिए। और अग्निहोत्र करने का, यज्ञ का जो फायदा है, तो एक तो ये प्रोफाउंड और मेरा मीनिंग है कि अपनी कमियों को जलाइए, अपनी बुराइयों को जलाइए। पर डेली कर्म जो बताया गया है यज्ञ का, वो होता है कि हवन करना। हवन करने का बहुत ही बढ़िया मतलब है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली मार्स एंड सन आर कनेक्टेड विद यज्ञ और होम, एंड दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं। जब आप उनको घर में एक्टिवेट करते हैं तो आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपकी भूमि का जो भी कहते हैं ना, कोई भी इंसेक्ट्स हैं, कुछ भी है, तो वो उस सब से आपको मुक्ति मिल जाती है, आपका वातावरण शुद्ध हो जाता है, सराउंडिंग्स शुद्ध हो जाती है। तो यज्ञ का मतलब केवल और केवल पूजा का नहीं था। वो जो उसमें सामग्री पड़ती है, वो सब, वो आपके पूरे घर का वातावरण शुद्ध करती थी। एंड एस्ट्रोलॉजिकली सन एंड मार्स, मंगल और सूर्य आपके तेज होते थे, तो आप अच्छे फाइटर बनते थे, आप एम्बिशियस बनते थे। यस। और मेरे हिसाब से है कि रोज एक बुराई का यज्ञ कीजिए, दैनिक कर्म अच्छा होगा और आपका जीवन अच्छा होगा। तो ये आपका चौथा वही बात है जो चौथा कर्म। ये अगर देखा जाए तो हम इनको एज अ रिचुअल अपनी लाइफ में इतने अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हैं। आई रिमेम्बर माई फादर यूज्ड टू टेल मी, सुबह स्कूल के लिए जब हम तैयार होते थे, स्कूल जाने से पहले वो हमेशा पूछते थे, आज शीशे के सामने खड़े हुए अपनी स्माइल उठाई और अपना गुस्सा छोड़ दिया? तो तब हमें समझ नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं, बट दैट इज माय रिगार्ड्स। व्हाट यू आर सेइंग इज दैट, बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। थैंक यू। बहुत दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि सुबह एक गुडनेस सुबह उठ के अपनी स्माइल छोड़ दीजिए। मतलब आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप स्कूल में जाएंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे, अपने से बड़ों से मिलेंगे, अपने से छोटों से मिलेंगे, तो आपको उनसे कैसा बिहेवियर रखना है। यू नो, यू हैव टू have a good smile on your face. You have to be happy meeting them, you know, and keep your sadness or all of that anger away. You do not have to create enemies. You have to go out and make friends. So छोटी छोटी चीजें हम अगर जानते होंगे तो हम inculcate कर पाएंगे। I think this is very interesting. What I feel like, मैंने अपने पूरे जीवन में मेरे घर में हमारा जो मेरा सरनेम है वो शादी से पहले अग्निहोत्री ही था। we belong to that fraternity जो अग्नि कर्म करने के लिए ही जाने जाते थे। We are Brahmins। मेरे घर में रोज हवन होता था। My father used to do home और हवन और यज्ञ daily, every day। तो I have seen कि वो हमारे दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी लाया और हम सबको बहुत, मतलब, और वो हमेशा यही कहते थे कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यही है कि आप अपना एंगर, जेलसी
छोड़ दीजिए, डाल दीजिए, इसमें छोड़ दीजिए, आहुति दे दीजिए। सो आई थिंक यज्ञ कर्म का मतलब यही है कि एक तो आपके वातावरण को शुद्ध करता है, मंगल और सूर्य को अच्छा करता है, और अगर आपने बुराइयों का यज्ञ कर दिया तो आप बहुत ही अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। और पांचवा, प्रेरणा जी, पांचवा जो है वो है हमारा कर्म धर्म। शास्त्रों में कहा गया है कि सबको अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। यहां पर भी मैं अपना इंटरप्रिटेशन दूंगी। when I talk about dharma, I never talk about religion. Right. I do not do. I connect dharma with the righteousness. एक एंटिटी का धर्म, राइट। जो भी चीज सही है वही धर्म है। जब कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य परित्राणाय व्हाटएवर, याद नहीं, तो इसका क्या मतलब था? व्हेन ही सेज कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं धर्म का उत्थान करने के लिए। तो क्या कृष्ण हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम धर्म नहीं, व्हाट ही वाज सेइंग, जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब जब जब सत्य की, राइटियसनेस की कमी होती है संसार में, तब मैं उसको उठाने के लिए जन्म लेता हूं। सो डू नॉट, I would say advocate your own dharma. I would say you should advocate tolerance. Tolerance should be your dharma. Right. So जब धर्म की हम कहते हैं कि नित्य कर्म में धर्म करना चाहिए, तो धर्म होता है कि आप हमेशा सत्य का, सही का, न्याय का साथ दीजिए, और इस बात से कभी मत डरिए कि इसमें मेरा क्या होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। कहते हैं जब हम अपना अच्छा बुरा सोच लेते हैं ना, तो हम धर्म का साथ नहीं दे पाते। नहीं देते। यू हैव टू गो। बिल्कुल। सो आप अपने इवॉल्व करिए सोल को, और धर्म के कार्य में जुट जाइए, यानी सही चीजों का साथ दीजिए जीवन में। आपका जीवन अच्छा है रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा डॉक्टर रिचा आपने। अगर हम इसी को आयुर्वेदा के मापदंड से देखें जी, तो धर्म, आयुर्वेदा में 3 तरीके के रस या टेस्ट बर्ड्स, 5 तरीके के टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट हम बोलते हैं लेने के लिए, विच इज स्वीट, सावर, बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड सॉल्टी। सो ये एक तरीके से धर्म का आचमन ही कहलाया जाएगा कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ मीठा या सिर्फ नमकीन भोजन ही जरूरी नहीं है, वो बिटर और एस्ट्रिजेंसी भी आपकी जबान, आपकी बॉडी के बैक। बिल्कुल। सो अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तब भी वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है, तो आपको उसमें थोड़ा बिटरनेस लाना पड़ेगा अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। इसी तरह से अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है, आपके कर्म या आपका धर्म, आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप उसको सही कर सकते हैं। दैट प्रोसेस वुड बी बिटर, दैट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो, और यू नो, बट स्टिल सत्य को पकड़ के रखिए, सच की राह पे चलिए। ये तभी ये जिंदगी जो है बहुत ही अच्छी हम खुद भी जिएंगे और छोड़ के भी ऐसे ही अच्छे संस्कार जाएंगे। और देखिए जब हम डेली रूटीन में ही ये करने लगते हैं ना कि भाई मैं किसी भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी, नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल। अगर मैंने अपना सिद्धांत बना लिया तो आप समझिए कि मैंने अपने कर्म को राइट ट्रैक पर डाल दिया। हमें फिर कुछ करना नहीं होता है, वो तो ट्रैक सेट हो जाता है, ट्यूनिंग हो जाती है माइंड की।
और जब आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं तो आपके प्लैनेट्स आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने आसपास अच्छी एनर्जी ही चलने दे रहे हैं. यू आर सराउंडेड बाय गुडनेस, पॉजिटिवनेस. राइट. सो धर्म का मतलब है बी राइटियस. बी राइटियस, राइट. तो ये किस प्लैनेट से डिनोट करता है डॉक्टर? देखिए क्या है कि हमारा बृहस्पति का कार्य क्षेत्र, जुपिटर का जो एरिया ऑफ रूलिंग है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जो हमारे पंच तत्व हैं बॉडी के, उसमें जुपिटर जो है वो आसमान को रूल करता है, इनफाइनाइट. सो राइटियसनेस कम्स फ्रॉम जुपिटर. Whoever has, so Jupiter is space. बृहस्पति, हाँ, स्पेस, राइट. तो उसका ये सबसे और हमारे लाइफ के मतलब मैक्सिमम चीजें, बच्चे, ज्ञान, शादी, हमारे विचार, विजडम, आजीविका यानी कि नौकरी चाकरी, धन, बहुत सारी चीजें जुपिटर रूल करता है. So the I would say work field of Jupiter is very wide, wider than any other planet. So when Dr. Richa, if you do the right things, Jupiter आपका अच्छा होता है. आपके जितने मैंने एरियाज बताए हैं सब अच्छे होने लगेंगे. Just follow the right path. Absolutely. So if we compare that to Ayurvedic way of life, तो एयर या स्पेस हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जगह लेता है. Okay. Because blood movement is all movement, like air, that is movement. Breathing is all movement, that is air. You know, whatever we are eating, that is getting digested because of air, because there's digestive fire, which is air. All the elimination of toxins is also a movement, that is again Air. a function of air. So oh my god, I'm so amazed. Yeah, even I'm surprised. It's right. resembling. So, yeah. True. So if we do this karma of eating right, drinking right, and you know, we are doing good for our body, we are doing good for the cosmic energy which has created us or the planet or the life. So this is really something very interesting. Very, it's very, I'm too very surprised. Yeah, and that is, I'm liking this, so much to learn. Yeah, even I'm learning so much from you, Prerna. Yeah, definitely, I'm learning so new things, you know, because yeah, I follow like good simple lifestyle, but Ayurveda is so wide and so connected with your body. It's wonderful. I'm so surprised, and I'm so very happy to connect with you. Yeah, same here. Now I actually have no words after we have spoken about Jupiter, air, and space. It's like it is such an ocean of knowledge which we are yet to unearth. You know, no doubt that I'm studying Ayurveda, but there are certain things that have been given as part of upbringing, which we understand now that, you know, it is Ayurveda or it is a part of astrology. So I think this combination of holistic science, even if we understand a little bit and practice it a little bit in everyday life, I think this world would be a much better place to live. Much better place to live. Yeah. And I think we are going to, you know, maybe we end up learning, I'll end up learning Ayurveda and you end up learning astrology. Who knows? Right. Sure, for sure. And I think this would be something very interesting for the viewers also, because they are getting information on both the areas of life, which we feel is a mystic science. You know, we do not understand much about it. So they'll be able to clear their doubts as we are clearing our doubts. In fact, Prerna, मेरा तो mission ही ये है to demystify astrology. Oh, I just want to clear all the air around it. It is so naturally connected with you and your body. There is no need to fear or, you know, be afraid of this. No, it comes naturally to you.
planets comes naturally into your body, into your system. And if you improve your system, your planets are improved. Your karma is improved. So it's not, I mean, maybe इसमें मिस्टेक वाला बात नहीं है, बहुत सिंपल है. जितना सिंपल समझेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे. Absolutely. I think maybe if people want to have a personal consultation with you, they can reach to you directly. Knowing that you make this science so easy to understand and implement. You know, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है. If you know your Saturn or your Sun or Mars are not in your favor, there are certain daily habits that you have to inculcate in your routine every day, and you know you are kind of sorted for life. Yeah, that's very interesting. Yeah, and I think आपके पास तो नॉलेज का, आयुर्वेदा का पूरा भंडार है. लोगों को आपसे तो जरूर ही कनेक्ट करना चाहिए. अगर वो एक तो आपकी चाय वेदा से कनेक्ट करना चाहिए. अगर प्रोडक्ट्स वगैरह आपके जानने, इवन आई विल कनेक्ट यू पर्सनली. और उसके बाद और लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि आपसे जुड़ना चाहिए और आपकी चाय वेदा को ना एक्सप्लोर करना चाहिए. I think you are doing a wonderful job. Doctor, thank you. Like for you, my purpose is also to connect this ancient wisdom to the modern lifestyle of today. You know, that is the only purpose. And Ayurveda is such a vast science. I think एक lifetime में तो कोई इसको पूरी तरह जान नहीं सकता. Oh, so is astrology. So is astrology. I do not know much about astrology. I have to give my lifetime or maybe several lives. Who knows? Several lives to understand. Because, you know, the purpose is that all of this was there, not really documented properly. And word of mouth se chalta gaya. And so many rituals that you have shared, maybe we as a family were practicing them, but we were never aware that they are Ayurvedic rituals or astrological rituals. और सिर्फ मम्मी पापा ने कहा है ऐसा करना है तो वो वैसे ही करते जा रहे हैं. So maybe a lot of knowledge got lost also because I hope it does this only कि मॉडर्न उसके साथ हम किस तरह से इसको जेल कर सकते हैं. Proper understanding, you know, and without being afraid of this, without being you know कि भाई मेरा उपाय क्या है, मेरी रेमेडीज क्या है. ये आप 5 चीजें करने लगिए जो आज बताइए, सारे उपाय हो जाएंगे. Absolutely. I think और इसी तरीके से अगर I think we should take a leave from the audience. Yes, Dr. Richa. And if audience have any questions, they can always connect with us. Send us a DM and next week tune in again. Tune in again for Karma in a Cup, and we are going to talk about spices, how they are connected with your body, Ayurvedically and astrologically. Yes, I will tell spices in our next session. I am going to tell you which spice connects with your moon sign. Oh, wow, so powerful. Yeah. Keep watching. That is going to be very interesting. I'm so excited. Okay, so we'll take leave from our viewers, and I would like to thank you, Dr. Richa. Thank you, Prerna ji. Thank you. And we meet next Tuesday again. Thank you. Goodbye.